Hi guys, welcome to my YouTube channel and if you're new to this channel, make sure करना कि आप इसे like, share और subscribe जरूर करें. Today I have Sachin Mandot, who is a tech consultant and he came to Canada just a few years ago, in fact in 2021. 2021. He came on a closed work permit and then he converted into his PR. We are going to discuss about his experience in tech industry in India, in Canada, and overall the whole journey. So Sachin, welcome to the Thank you so channel. much. If you can just give a brief introduction of where I left. I came to Canada in 2021 में 2021 में आया था और मैं एक ऐसे वीज़ा पे आया था जिसे क्लोज्ड वर्क परमिट बोलते हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, ICT. So my employer in India applied that work permit for me and I got transferred to Canada. So same employer, but they moved me from India to Canada. Got it. They had their branch over there So and they had their it's branch like here. US में L1 होता है, right? Got You it. Got move it. for the same employer, so yeah, that. But generally if I may ask, आपका प्रोफाइल क्या था वहाँ पे? मैंने MBA किया है IMT गाजियाबाद से, which happens to be a decent B school when it's come to marketing and IT. Right. So I've done my MBA in marketing, IT, sales, and then I got employed by my employer out of campus placement, and then I have been with the same employer for almost 5-6 years. Got it. And your line basically is into tech consulting. Tech consulting, yeah. I think I've done a lot of things. I've done business analysis and all the areas outside coding. Were you asked for this opportunity or did you ask for this opportunity or it just fell into place? I was lucky that I got this opportunity. My employer had a position here in Canada और उन्होंने बोला do you want to move? I'm like yeah, I would move. So 21-22 was that time जब बहुत लोगों ने move किया different countries में. You came here alone or like do you have like a family or? So I have a spouse, I have a wife. She came alongside with me. She gets open work permit. So Canada का concept and I got to know only after she got it. So as soon as your spouse gets a work permit, it becomes an open work permit. True. So that work permit is not dependent on my permit anymore. So just to clarify, the open work permit that your wife got is not dependent on your closed work permit. Yes. Which means कि let's say मतलब खुदा ना खास्ता like just to clarify, अगर आपका let's say job चला जाता है, your wife will not be affected. So this is what a consultant told me. मैंने एक immigration group में पूछा था and I think उन्होंने ये जवाब दिया था. But then I do not know the technicality. So ऐसे सारे question पे I would say कि आप मेरी बात सुनते रहे हो, but consult an immigration consultant. True. Because I think I know about this more on the US side. पहले तो उसमें open work permit वाला system है नहीं जो normal H1 visa US में नहीं है. But अगर किसी primary वाले का H1 वाले का अगर job चला जाता है, they have that 60 day I grace think period 60 days, whatever your permit is dependent on the other person. Exactly. But that's a good thing अगर ऐसा है possibility. Like I also don't know, so please check it out. Don't take this as like professional advice. Let's say अगर ऐसा है right and I would think यार Canada as a country उनका थोड़े से जो policies है ना काफी family centric बोलो या human centric like humanity based होते हैं कि यार दरियादिली है. US का immigration is focused on the employer. I think Canada का immigration तो ICT जब मैं यहाँ आया था तो ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं था कि वर्क परमिट क्या होता है क्योंकि इंट्रा कंपनी जो ट्रांसफ़र होता है ये LMI एग्जाम्ड वर्क परमिट होता है. So I think only a few employers get it. Now I do not know what are the conditions, but I think आपका एक certain size होगा, आपका एक certain scale होगा तभी आपको ये मिलता है. Got it. मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा के अंदर PR भी employer independent होता है. मतलब आपके employer को आपके PR के लिए अप्लाई नहीं करना होता है. जरूरत ही नहीं है. जैसे मेरे केस में जैसा मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, मैंने अपनी इमिग्रेशन की प्रोफाइल क्रिएट की और मुझे PR का इन्वाइट आ गया. IT है तो आपको वही जो भी लैंग्वेज टेस्ट देना होता है XYZ जो भी आपको करना होता है. So what was your CRS? 510 या कुछ 504 something like that. So I scored full on CELPIP. मतलब 12 out of 12 in all of the sections. तो भाई लोग IELTS मत दो CELPIP दे दो. भाई ने 510 ले लिया. हाँ मतलब it contributes. If you get full score in all of the sections, your score gets higher. हाँ CELPIP कर लो और भाई जैसा दिमाग ले लो. CELPIP में मुझे ऐसा लगा जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने IELTS और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब एक बार ट्रायल दे के देखा. CELPIP बहुत कनाडा सेंट्रिक है एंड शायद सिर्फ PR के लिए जब मैंने दिया था तो सिर्फ PR के लिए यूज़ होता था. आई डोंट नो अभी काई के लिए यूज़ होता है. तो उसके जो कॉन्वर्सेशन है वो भी बहुत कैनेडियन थी कि ये गार्बेज का दिन है, आज गार्बेज कलेक्ट होगा, ऐसे सेपरेट करना होता है. मतलब आप समझ रहे हो कि ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी बेसिकली यू आर सेइंग कि आप कंफर्टेबल होते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हाँ मतलब एक तो ये था कि हमारा नया ऑफिस डाउनटाउन से शिफ्ट होके
यहाँ जा रहा है तो मुझे इतना ट्रैफिक में मूव करना पड़ेगा, टीटीसी भी एक ऑप्शन है। सो ये सब आपने सुना हुआ है सुना पहले हुआ से। है, got it, got it. आइल्स को आई थिंक उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है वर्ल्ड वाइड के लिए, यानी Global generic यूके रखने के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो उनका एक्सेंट भी बहुत न्यूट्रल होता है। यहाँ का एक्सेंट आपको शायद सेल्फे में मुझे कैनेडियन एक्सेंट लगा, और हम कई लोगों ने एक साथ दिया, यानी मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक साथ दिया ये सेल्फे, एंड सब लोगों का स्कोर लगभग बेटर था आइल्स के मुकाबले। So you basically had a job when you came over here. I basically, that had a means, job when I came here. right, and you converted it into a permanent residency. After how many years? Like 1 year, 2 years? Like when did you? I think 1.5 year. Okay, so you came in 2021 and then you converted in 23. Technically, it is not convert. In Canada, you cannot convert any visa. You have to apply for a new I mean, you met the requirement eligibility criteria and you got invited for Yes, PR. yes, yes. Okay, so now you are a PR on your wait for citizenship now. I think yes, I am on my wait for citizenship. I think citizenship का कुछ 3 साल का होता है, right? You have 3 years, But and you were in work permit, so I that was in counts as half a day. So any time that you're taken before, and this is what I read on the website of IRCC, that any time that you're taken before your PR, that is counted as half a day up to a certain limit. So both of them will have a combination, maybe 3 साल में से आधा साल या 1 साल कम हो जाएगा max. Alright. Let's come to your tech background, right? Like, what made you choose tech consulting, if you will? I'll tell you what. I had an IT background even before MBA. I did an IT job for 2 years almost. ठीक है. MBA के बाद जब आपका जनरली MBA में इंडिया में प्लेसमेंट कैसा होता है कि देयर इज अ प्लेसमेंट सीजन, प्लेसमेंट वीक, और उसमें कुछ कंपनीज प्लेसमेंट वीक के पहले आती हैं. तो माई एम्प्लॉयर केम इन दैट ड्यूरेशन एंड आई पिक्ड इट अप. आई मीन नॉट अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, टू बी ऑनेस्ट. आई हैड एन IT background, I liked the role, I took it. Got it. I liked the role and the salary and all that was offered, and I took it. In IMT Ghaziabad? In IMT Ghaziabad. Okay, so you were with that employer for how many years? I think 6 years. So you've been with the same employer Yes. ever since your Yes. MBA? Yes. Oh, that's nice. Yeah, that's wonderful. Like, you know, not a lot of people want to continue with the same employer all the time. I mean, yeah, But I mean, that's the thing, right? Like, you've been with that employer for 6 years, so you sort of built that relationship, and I guess some amount of specialized knowledge, right? Ultimately, and that's why that's maybe how they they'll prefer. move you. Exactly. So anyone who wants to move with their employer has to be with the employer for some time in order for them to process your visas. True. Right? मुद्दे की बात ये है कि to build that trust from the employer, you have to take the initiative. Like, it's not like you just get into a company and अगले साल ही आपका वीजा के अब लिए हो सकता है, कई लोगों को हो भी हो भी सकता सकता है, है, but but luck, it's all luck, right? I have heard cases here where employers have applied for LMIA of tech people to come here. I have had a friend, but then it has to be a very specific knowledge case, right? The person was a GCP big data engineer, a skill set that was very rare in 2022 when he came, और इतने लोगों के पास नहीं था. So I guess it all depends on how rare your skill is, right? I had a roommate in Bangalore who got his LMIA work permit because he was, I think, one of the few people in the world who understand a certain DNA genome. oh, So he was given a work permit by his employer in Montreal in 2018 or so. and I think Montreal is, by the way, a hub of all this like health science related Health science, industry. animation. Yeah. So I think not a lot of people know, but जो dome लास वेगस में लगा है बड़ा सा, Nice. Okay. I think it is designed by a company that's based out of Montreal. Oh. So Montreal has a lot of good startups in term when it comes to AI or biosciences or otherwise. Exactly. Aeronautics तो है ही. There are, so- I think, good aeronautics companies Like there, right? if people ask me like कनाडा में like startups कहाँ पे है, तो मेरा instant answer usually Montreal होता है. Like, it's not actually Toronto. Toronto you'll find like big businesses No, but वो for Waterloo में भी तो है बहुत sure. सारे. Yeah, obviously there is Waterloo and Kitchener, which is sort of like the Silicon Valley I of think it depends on Canada. where your campuses are. So Waterloo because Waterloo है वहाँ पे, Montreal because वहाँ पे McGill है. McGill है. McGill का computer science is good. That's what I heard. I think इस वजह से भी हो सकता है. Connected to that question, right? I mean, I know you have not done any you know, studies over here, but you've done an MBA, हाँ. right? Were you at that point anytime thinking of doing a master's from abroad, या आपका हमेशा फोकस था नहीं इंडिया में ही करना है, and then I work, and then if I get a chance to go abroad, then I go abroad? So I prepared for CAT. जब से मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो मैंने CAT की आई थिंक 2-3 बार CAT दिया है. बट अब्रॉड का आई थिंक आई थॉट ऑफ डूइंग एन MBA फ्रॉम अब्रॉड इन 2012.
from UK because I knew someone who did. So I come from a very small town, right? तो वहाँ पे जिन लोगों को आपने देखा होता है आप जनरली उनसे इंस्पिरेशन लेते हो. Someone I knew did his MBA from Cardiff, UK से, and they landed a decent job. So I thought, okay, this is the good way, right? You can go to UK, do your MBA. वहाँ पे 1 year का था, cost भी कम था उनके MBA का. But I think that year they brought in a visa regime where a lot of people had to go out. So even this person had to move out of UK because his salary did not meet their standards. And their employer was like, नहीं यार, अब हम आपका वीज़ा नहीं कर सकते, सैलरी बढ़ा नहीं सकते, वीज़ा नहीं कर सकते. So I did not really think, but I did not even research about Canada at that point of time. शायद कॉन्कॉर्डिया, मैकगिल या आईवी वगैरह का ऑप्शन हो सकता था, बट मैंने ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया. सो यू वर ऑलवेज फोकस कि इंडिया से ही एमबीए कर लूँगा मैं, एंड देन जॉइन द वर्कफोर्स ओवर देयर, एंड देन ग्रेजुअली अगर अपॉर्चुनिटी मिला, या तभी था ही नहीं कि ऐसा बाहर जाना है. So the thing is, I went to Europe in 2019. Okay. That was my first brush with a Western country. On like work. On for vacation. Okay, for vacation. Okay. So I realized that okay, West में life works in a different way. It was Europe, so there was a lot of public transit. There was a lot of vibrant city squares. All of those things. I'm like, okay, we can explore that part of the world as well, and it's good, right? If you, and I knew that IT के अंदर बहुत लोगों को मिलता है चांस, तो मे बी मिल जाएगा. True. But never thought of it. ऐसा प्लान नहीं था. हाँ. कि मेरे को जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत लोग का होता है ना कि यार हमको तो अब्रॉड ही सेटल होना है. फॉर योर केस एटलीस्ट इट वाज लाइक करियर बनाना है, इंडिया में ही बनाना है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो व्हाई नॉट. आई विल टेल यू द रीज़न. सो आप पंजाबी हो जी, और तो पंजाब एंड गुजरात में जनरली इमिग्रेशन का एक बहुत कल्चर होता है, क्रेज है. मैं आता हूँ मध्य प्रदेश से. जी. मध्य प्रदेश में एक तो ज़्यादातर लोग पुणे बैंगलोर में नौकरी करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें होता है कि हमारे दिवाली घर जाएंगे, हमारे होली, इन 2 त्यौहार पे मध्य प्रदेश वाले घर जाते हैं. तो अब अब्रॉड में भी लोग ये पढ़ने के लिए या तो यूएस जाएंगे या जर्मनी जाएंगे. यू वुड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश इन कैनेडा. इवन एक मध्य प्रदेश इन कनाडा का ग्रुप है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग सारे लोग हो गए होंगे. ओके सो मतलब इतने कम लोग हैं. सो दैट वे आई थिंक योर एस्पिरेशन टू सेटल डाउन अब्रॉड कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट यू हैव बीन इनटू. आई गेस फ्रॉम द कल्चर आल्सो, राइट? लाइक अगर आप पंजाब से हो तो आपको लाइक ऐसा है कि कनाडा ही जाना है. गुजरात से हो तो इट्स लाइक यूएस ही जाना है. सो मध्य प्रदेश में ब्रॉडली इतना ऐसा कल्चर नहीं, और अगर है भी तो यूएस और जर्मनी वगैरह थोड़ा बहुत है. हाँ, मतलब द ओनली पर्सन जो मेरे आज जान पहचान वालों में से था, एक डेंटिस्ट कपल था, वो केम टू कनाडा. तो सचिन, वी हैव डिस्कस्ड लाइक क्वाइट अ लॉट अबाउट योर बैकग्राउंड, लाइक हाउ यू जॉइंड MBA एंड देन फर्दर दैट यू जॉइंड योर कंपनी एंड देन यू केम टू कनाडा, कन्वर्टेड टू PR. अब हम मेरे को टेक इंडस्ट्री स्पेसिफिक टू कनाडा के बारे में बात करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट टेक इंडस्ट्री इन कनाडा. लाइक क्या उसमें फ़िलहाल या इन द फ्यूचर ग्रोथ है, इस तरह की स्किल्स में लेट्स से ग्रोथ है? जब कनाडा के बारे में रीड करते हैं तो जनरली हम ना बहुत आउटरीजियस न्यूज़ वगैरह देखते हैं, बट अगर आप देखोगे रिसेंटली कनाडा ने 2 बिलियन कमिट किए हैं AI के लिए. कैनेडियन गवर्नमेंट ने AI के लिए अगर कमिट किए हैं तो इवेंचुअली वो डिप्लॉय होंगे कैनेडियन कंपनीज के अंदर जो AI पे काम कर रही हैं. आई थिंक उन्होंने एक लिस्ट भी दी है कहाँ पे कर रहे हैं. ओके. सो AI के अंदर आई एम गेसिंग AI के अंदर कनाडा में काफ़ी काम हो रहा है. वो काफ़ी हाई स्किल्ड जॉब्स भी हैं, राइट? ट्रू. एंड AI के अंदर ये नहीं है कि आपको AI यूज़ करके कुछ रिपोर्ट बनाना है. ट्रू. LLMs यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा AI का काम हो रहा है. तो आई थिंक एंड आई फील दैट अगर किसी को यहाँ आना है तो ऐसी स्किल्स के ऊपर काम करके, ऐसी स्किल्स के बारे में पढ़ने के लिए आना चाहिए. लाइक AI, हाँ, AI हो गया फॉर एग्जांपल, या इवन फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह. मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ यहाँ पे जो कोर्सेज ऐसे चूज़ करते हैं, एंड मैं एज ए स्टूडेंट नहीं आया हूँ, बट मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, राइट? आई लिव इन टोरंटो, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन सोशल सेटिंग्स. सो बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये थोड़े से जेनरिक हैं, और इसके अंदर काफ़ी लोग हैं. इवन फॉर एग्जांपल मार्केटिंग. सो अगर आप इंडिया से आ रहे हो, सो लुक एट द स्किल्स जो कनाडा में चाहिए. सो लेट्स सी गवर्नमेंट कहाँ पे एलोकेट कर रही है कैपिटल कनाडा में. AI हो गया. अब आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखोगे,
तो कौन से वर्कर्स कनाडा में नहीं है? हेल्थ केयर नहीं है, ट्रू कंस्ट्रक्शन नहीं है। ट्रू सो आपको अपनी स्किल्स इन तरफ एलोकेट करना चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हो। Got तो देर इज अ हायर चांस ऑफ यू गेटिंग जॉब्स, अ हायर चांस ऑफ यू गेटिंग पिक्ड इनटू दोज ड्रॉज जो भी होते हैं। बेसिकली आप बोल रहे हो कि आजकल की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इट्स समथिंग दैट यू नीड टू एस्पायर टू लर्न, एंड जो वो जेनरिक से XYZ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सो बहुत से लोग ना ऐसे ऐसे रील बना देते हैं, ये स्किल्स हाँ डिमांड में। डोंट गो टू दैट, थोड़ी रीडिंग करो। राइट आपको एक तो ये देख लो कि गवर्नमेंट्स को कैसे वर्कर चाहिए, किस लाइन में चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 2 साल 3 साल क्या और गवर्नमेंट कहाँ पैसा डाल रही है। गॉट इट गवर्नमेंट, इफ़ यू फॉलो शॉन फ्रेजर जो कि अभी हाउसिंग मिनिस्टर हैं, एवरी डे ही इज अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स विथ 4 प्लेक्सेस, या जैसे अब 4 प्लेक्सेस बनाना शायद लीगल हो गया कहीं कहीं जगह। ट्रू So- आई थिंक इवन इन टोरंटो दे हैव लीगलाइज्ड। हाँ, मॉन्ट्रियल में हमेशा से लीगल था, टोरंटो में कई जगह वो कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए उनको, हेल्थ केयर में दे हैव शॉर्टेज, हेल्थ केयर चाहिए, AI में पैसा डाल रहे हैं। सो मे बी लुक इनटू द स्किल सेट वेयर देयर इज स्कोप, वेयर देयर इज डिमांड। लाइक डू यू थिंक लाइक टेक में तो हमेशा डिमांड रहेगा ही, जैसे आपने AI बोला, लाइक और डू यू थिंक कि टेक कनाडा में थोड़ा डाउन जाएगा? नो वन नोज अबाउट इट। मैं जो भी आपको बता रहा, नो वन नोज अबाउट इट, एंड आई थिंक देयर वाज अ ग्रेट डिमांड इन 2021-22 टाइम ऑफ द ग्रेट रेजिग्नेशन। आई थिंक वो साइकिल्स में चलती रहती है, तो नो वन हैज अ क्रिस्टल बॉल, नो वन नोज, बट एटलीस्ट अभी कहाँ पे एलोकेट हो रही है। सो आई थिंक सबसे ईजियर होगा कि आप लिंक्डइन पे जाओ और जॉब ओपनिंग्स देखो, किन किन की जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं। आप थोड़ा सा, सो डू नॉट रीड न्यूज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम, डू नॉट रीड न्यूज़ फ्रॉम पैपराजी पेजेस, थोड़ा डीपर रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। अच्छे लोगों को फॉलो करो, मतलब हम दोनों को फॉलो करो भाई, हम लोग डिसेंट लोग हैं। नहीं, बट देखो सोशल मीडिया क्या करता है, आप जैसे जैसा कंटेंट लाइक करते जाते हो ना, वो आपको वैसा वैसा पुश करके आपकी इको चेंबर में डाल देता है। सो इट्स अ कंफर्मेशन बायस। हाँ, आप कंफर्मेशन बायस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि यू बिकम एवरेज ऑफ 5% दैट यू लिव विथ। अब हम सोशल मीडिया के एरा में रह रहे हैं, सो यू बिकम एवरेज ऑफ कंटेंट दैट यू कंज्यूम। सो डो नॉट कंज्यूम, आई मीन। और एक तो एल्गोरिथम ने क्या कर दिया है लोगों को कि दे वांट टू मेक आउटरेजियस क्लेम्स और आउटरेजियस पॉइंट्स, ऐसे कंट्रोवर्सी चाहिए। तो आई थिंक हाँ, मतलब सोशल मीडिया में मत देखो, थोड़ा रीडिंग कर दो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई सोशल मीडिया में इन्फॉर्म भी दे रहा है ना, लाइक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है ना, यू डोंट जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट पर्सन थिंकिंग दैट कि नहीं ये न्यूट्रल है या ये बायस नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। एट द एंड ऑफ द डे you have to do your research on yourself based on what your expectations are, or what your 15 सेकंड में कॉन्टेक्स्ट नहीं आ पाएगा। ट्रू। तो हो सकता है वो उस बंदे के लिए या उस बंदी के लिए सही हो, बट कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो जब आप यहाँ पे आ रहे थे लाइक 2021 में, क्या आपने इस तरह के वीडियोस देखे थे जो बोल रहे थे नहीं कनाडा तो बर्बाद हो गया है या बहुत प्रॉब्लम है या स्टफ लाइक दैट? सो कनाडा, आई थिंक पहली बार मुझे कनाडा के बारे में ज़्यादा पता चला 2019 में ट्रैवलिंग देसी से। अच्छा। मोहित मनोचा ट्रैवलिंग देसी, एंड वो जनरली वो उसके वीडियोस उस समय काफ़ी अच्छे थे कनाडा के बारे में। सो मैंने वो देखे। मुझे आई गेस 2019 के पहले तो कनाडा वाज लाइक जस्ट एनी ऑफ द अदर 196 कंट्रीज ऑन द ग्लोब, राइट? ट्रू। सो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स जिसने कनाडा के बारे में दिखाना चालू किया। आई सॉ दैट, बट टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे कनाडा का अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने कुछ लोगों से यहाँ बात किया कि आप जब कहीं आते हो तो आप क्या करते हो। जैसे मान लो अगर आपको आज यूके जाना है काम से, आपको वीज़ा लग गया, आपकी कंपनी बोल रही है, आप क्या करोगे? आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगे खर्चों के और सैलरी के और टैक्स के। ट्रू। तो ये आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा उस समय तो कुछ, आई डोंट थिंक सो कनाडा के बारे में कुछ था। सो मैंने कुछ लोगों को जिनको मैं जानता था, मैंने लिंक्डइन पे रीच आउट किया और उनसे पूछा कि अच्छा व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ कनाडा एंड ऑल ऑफ दैट। ट्रू। तो यू बेसिकली सेट योर एक्सपेक्टेशंस बाय कनेक्टेड विद सम लोकल पीपल। हाँ, एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब 2021 में जिन लोगों से पूछा था, उन्होंने मेरे को 2020 और 2019 की एक्सपेक्टेशन दिए थे। सो इफ़ यू आस्क समवन अबाउट एक्सपेक्टेशंस, हमेशा उसमें से 10 या 20% बढ़ा दो, क्योंकि बाय द टाइम यू विल कम चीजें महंगी हो गई, रेंट महंगे हो गए होंगे। हाँ, that's true. तो ये चीज़ होती है कि व्हेनेवर यू आस्क समवन वेयर डू यू लिव, सो इवन अगर कोई बंदा
पिकरिंग में भी होगा तो वो बोलेगा टोरंटो में टोरंटो है, ठीक है, GTA टोरंटो। तो इट वेरीज अक्रॉस। सो पिकरिंग से लेके हैमिल्टन में कॉस्ट बहुत डिफर करता है। दैट्स ट्रू। सो एंड कई लोगों का रेंट ऐसा भी होता है कि वो रेंट सीलिंग वाले अपार्टमेंट्स में है या कॉन्डोज में है, तो उनका रेंट इतना बढ़ता नहीं है। सो यू डोंट नो, आई मीन ठीक है, इट्स ओके, डू योर रिसर्च वेल। That's true. And connect with local people, but keep a 10-15% buffer buffer, always. buffer. Coming back to like tech. So a lot of people generally ask me this question: what if somebody does not have a tech degree, but उनको tech में आना है? First of all, can they even do it? हाँ. But if they can, what is the best way you can guide? So a lot of people from my MBA batch got placed into tech companies without tech backgrounds. Okay. तो I think सबसे easy तो होता है कि अगर आप अपने कॉलेजेस से अप्लाई करते हो, अपनी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हो तो, एंड इफ यू गेट एक्सेप्टेड देयर, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स फीजिबल, बट इनटू जैसे बिजनेस एरियाज हो गए, कंसल्टिंग हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, वहाँ तो आप शायद बिना टेक बैकग्राउंड के भी चले जाओगे। बट कोडिंग वाली जॉब्स में आपको या तो सीखना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन करना पड़ेंगे, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। नाइस। कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोडिंग भी नहीं आती और डिग्री भी नहीं हो, मैं चला जाऊँ। बट इस लेट्स से अ सर्टिफिकेशन कैन इट बी अ रिप्लेसमेंट इफ यू विल फॉर अ डिग्री? सो डू यू थिंक लाइक बाय डूइंग सम सर्टिफिकेशन, आई डोंट नो, अज़ूर सर्टिफिकेशन, कैन दे एक्चुअली क्रैक अ जॉब एट सम कंपनी? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो वैसे सब कुछ होता है। आई थिंक इट इज जस्ट दैट व्हेन यू अप्लाई फॉर दैट जॉब, आर यू एबल टू क्लियर दोज राउंड्स, क्लियर दोज इंटरव्यूज? आई मीन इट डिपेंड्स व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, एंड आई एम अज्यूमिंग कि बहुत एंट्री लेवल पे लगाया होगा, क्योंकि लैटरल स्विच अगर आप करोगे भी तो आपको एंट्री लेवल पे जाना पड़ेगा। Got it. Exactly. So ultimately you are saying that skills are definitely important. हाँ, A degree helps. डिग्री जनरली मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडिया से कोई US, UK, कनाडा जाता है तो डिग्री एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ड्यूट फॉर इमिग्रेशन। ओके। सो जनरली लोग इसलिए भी डिग्री करते हैं। हाँ, डिग्री करते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें एक तो जॉब मार्केट अच्छा एक्सप्लोर करना, दूसरा इमिग्रेशन ईजी हो जाता है, राइट। आप इंडिया में बैठे हो, आप अगर नौकरी के लिए अप्लाई करोगे US, UK, कनाडा में, तो डायरेक्टली तो आपको बहुत कम लोग हायर करेंगे, तो लोग इसलिए भी डिग्रीज लेते हैं। That's true. Like a lot of positions that you have to go, even in US, like जो H1 visas हैं, उसके लिए भी you need a bachelor degree, for example, bare minimum. This is one thing I want to tell you, यार. Like even to get into an IT company, even in like India, they're asking for engineering degrees, for example. Majority of the good I think IT campus placement से ही कई लोगों की नौकरी लगती है। Majorly they go to engineering colleges only for campus placements. So by there itself you could probably assume कि अगर आपको डिग्री करनी है तो proper डिग्री करो, not the basic sort of अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो वन टाइम आप आई गेस आप बैचलर के बाद मास्टर्स तो लाइफ में एक ही बार करोगे, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरा मास्टर्स करते हैं। ट्रू। सो अगर आप मास्टर्स करने वाले हो तो थोड़ी एफर्ट लगा के अच्छी जगह से करो, क्योंकि इट गोज़ लॉन्ग वे। जितने भी लोग ये बोलते हैं कि डिग्री डज नॉट मैटर और अच्छा कॉलेज डज नॉट मैटर, उन सबके पास स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, सबके पास होता है। एट द एंड ऑफ द डे अ डिग्री इज इंपॉर्टेंट। डोंट हियर व्हाट दे से, सी व्हाट दे डू। या दैट्स ट्रू। एक प्रॉपर डिग्री ज़्यादा बेटर है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ समवन डज नॉट हैज अ डिग्री, तो सर्टिफिकेशंस वगैरह करके भी मेहनत का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। मतलब अगर किसी ने मेहनत की है तो प्रवीण तांबे 40 की एज में भी क्रिकेट खेल गया ना। That's true. You're a cricket fan, it seems like. आपको प्रवीण तांबे का भी पता है। I'm a cricket fan, so just saying that Netravalkar. Oh man, this guy Netravalkar, like Mumbai guy, he's from Mumbai as well. I know he's from Mumbai. Like उसका तो भाई I'm a big fan यार. Like huge shout out to Mr. Netravalkar यार. भाई IT में, टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने ना कॉम्प्लेक्स दे दिया ना आज के दिन में, तो भाई नेत्रवलकर है। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस गाय। ही इज द न्यू शर्मा जी का लड़का नाउ इन IT. व्हाट डू यू थिंक? नहीं, he is too good. So he is too good यार, obviously. I think, I mean उसने क्या नहीं किया है भाई। उसने लाइक चलो ठीक है US में ये सब जॉब है, लाइक जॉब है ना एंगल वाला तो है ही एक, बट ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अच्छा क्रिकेटर रहा है। उसके बाद में जॉब किया उसने, ठीक है, USA में आया, उसके बाद में पेटेंट है भाई उसके ना, या उसने अप्लाई किया पेटेंट के लिए। आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट मैं आपको एक बात बताता हूँ, सौरभ नेत्रवलकर क्रिकेट खेल रहा है एट द एज ऑफ 32-33, बॉलिंग कर रहा है। फॉर बीइंग अ फास्ट US के लिए क्रिकेट खेलो तो मैं भूल ही गया बोलना। और बीइंग अ फास्ट बॉलर आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए। जैसे बैट्समैन तो फिर भी 40 तक खींच जाते हैं कई सारे बैट्समैन,
आपने देखा होगा जनरली बॉलर्स जल्दी इंजर हो जाते हैं, जैसे जवागल श्रीनाथ बहुत जल्दी निकल गए क्रिकेट से, रिटायर हो गए। देन आशीष नेहरा इन एंड आउट रहे, व्हाट डू से ईशांत शर्मा आई थिंक 35-36 में कमेंट्री बॉक्स में है। सो बीइंग अ फुल टाइम एम्प्लॉई, आप वीकेंड्स पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी आपने इतनी फिटनेस मेंटेन की है कि आप क्रिकेट खेल पाओ। इंस्पायरिंग, लाइक कसम से भाई ऊपर से यूकुलेले भी बजा रहा है, यू नो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यार। एक एग्जांपल ये भी है नेत्रवलकर का कि व्हेन यू आर अब्रॉड यू गेट टाइम टू परस्यू योर side hustles or passions or whatever. उसका Is reason that क्या है? like I want to ask you this question because this is a very important topic for a lot of people. Work life balance or work culture in India versus Canada. चल आई एम अज्यूमिंग आप दोनों जगह 8-8, 9-9 घंटे काम कर रहे हो। आप इंडिया में 9 घंटे काम कर रहे हो, बट इंडिया में जनरली 11 बजे ऑफिस शुरू होते हैं। ठीक है आप इंडिया में, because the clients most likely would be एंड मैं abroad. आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी इंडस्ट्रीज की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। True. सो 11 से 8 ऑफिस होता है इंडिया में। कनाडा में जनरली 8 बजे शुरू हो जाता है, 8 या 9। ठीक है। सो आप 9 से 4 या 9 से 5 में फ्री हो जाते हो। अब इंडिया में जो आपका 11 से 8 होता है, उसके बाद आपने कम्यूट भी ऐड कर लिया थोड़ा, तो आपका दिन ना इधर का रहा ना वहाँ का रहा। बेसिकली पूरा दिन काम में चला गया। आई थिंक आई सीन पीपल हियर, एंड इनफैक्ट कनाडा में तो नॉट, बट इन यूएस पीपल स्टार्ट देयर डे एट 4-5। Yeah, that is true. They start very early, they That do is their true. gym, they do their exercise. Oh man, that is true. मैंने सुना है जो लोग न्यूयॉर्क में काम करते हैं ऑन वॉल स्ट्रीट, सो ट्राई स्टेट एरिया बोलते हैं ना, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेटिकट। सो कई लोग कनेटिकट से ट्रैवल करके आते हैं न्यूयॉर्क, 2 या 3 स्टेट करके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज ऑब्वियसली गुड। एग्जाम्पल लेते हैं कनाडा का, कई लोगों को जिनको डाउनटाउन आना होता है, वो अपनी कार गो ट्रेन पे पार्क करके गो ट्रेन से आ जाते हैं। That's true. राइट, सो आई थिंक वहाँ पे भी वैसे ही वो लोग करते हैं कि दे ड्राइव टू द नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन एंड देन दे गेट ऑन द ट्रेन एंड कम टू न्यूयॉर्क। I actually had a friend of mine in one of my previous companies in Canada, and he used to come from Oshawa to Toronto in his car, and he used to get out of his home at 6 a.m. ठीक है, so 6 a.m. it used to take him hardly probably 1 hour to reach office. ठीक है, so by 7-ish he would be in the office in downtown, and then he would leave at 3 p.m. हाँ, right? So because he had that liberty to leave at 3 p.m. and like nobody will question you कि आप क्यों 3 बजे निकल रहे हो, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं सुबह 7 बजे आ जाऊँगा, मैं 3 बजे निकल रहा हूँ। Nobody ever questioned that guy, and in fact मैं भी अगर करूँ, सबके बच्चों को, सबको अपने बच्चे पिकअप भी करने होते हैं। Exactly, एक वो भी एक रीजन होता है। If everyone does something, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव दिस एग्जाम्पल टू लॉट ऑफ फोक्स इन जर्मनी, एवरीवन हैज टू टेक ट्रेन्स, सो वहाँ पे सब टाइम के पाबंद है। इन कनाडा एवरीवन हैज टू पिकअप देयर किड्स फ्रॉम देयर डे केयर, जिनके बच्चे हैं, तो दे अंडरस्टैंड, सो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है टू लीव एट 3। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि बिकॉज ऑफ द वे द कल्चर इज डिफाइंड और द वे द एंगेजमेंट मॉडल इज डिफाइंड, एज इन लाइक अगर आप इंडिया में काम करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्लाइंट्स यूएस बेस्ड होंगे या यूरोप बेस्ड होंगे, तो आपको रात तक स्ट्रेच करना पड़ ही जाता है। तो उसके लिए आप ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग 8 AM ला के रात के 8 बजे तक नहीं बैठोगे, तो आप 11 बजे ही आओगे ना। हाँ, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि आपका जो मॉर्निंग टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा शाम के, ज़्यादा से ज़्यादा आप उठ के एक जिम चले जाओगे। बट यहाँ पे क्या है कि बिकॉज यू आर एट होम एट लेट्स से 5 PM, आपके पास एक अच्छा तगड़ा एक 4-5, और ऊपर से समर्स में तो दिन भी बहुत बड़े होते हैं। हाँ, तो 5-6 घंटे तक का अभी लाइट है, अभी आज सबसे बड़ा दिन है। आज what time is it now? आज 8:45 है। It's 8:45 and Today it's is the like, biggest day of the year, 21st June. Yeah. oh yeah, this is like the official Summer start of the solstice. summer ना। हाँ, Summer solstice आज। That's true. So I think that's a big factor. Like it's not necessarily कि वहाँ पे जानबूझ के conscious effort है कि वहाँ पे work life balance नहीं देनी है like इंडिया में। It's just the way the models have been defined. हाँ, and which is fine, right? I mean, you always have to work the hours of your employers. जैसे यहाँ पे भी कई लोग टोरंटो में बैठ के पैसिफिक में काम करते हैं, True. तो उनका टाइमिंग 11 से 8 है। That's true. So they will have different ways of managing their time. शायद That's part and parcel of life. Like, but the reality is, or the result is that you do get some extra time over here just because of the way things are. just because of the way things are. Got it. In India, you were in Pune, right? हाँ, I was in Pune. How is the public transit, let's say, in Pune compared to Toronto? पुणे का पब्लिक ट्रांजिट तो नॉन एग्जिस्ट, मतलब पुणे हैड बसेस बट पब्लिक ट्रांजिट वाज बैड इन पुणे. सो एवरीवन, आई थिंक पुणे एज अ सिटी हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट 2-wheelers इन द कंट्री.
बिकॉज पब्लिक ट्रांजिट नॉन एग्जिस्टेंट है. So for you this is like obviously much better. आई एम एक्चुअली पब्लिक ट्रांजिट एंथुसियास्ट. मैं जिस भी सिटी में जाता हूँ आई ट्राई टू यूज द पब्लिक ट्रांजिट एटलीस्ट वंस. So I have been to a lot of cities. I have been to in Western world, New York, Chicago, Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, all of them, and some cities in Europe. So मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर 2 cities का ट्रांजिट अच्छा है. मुंबई एंड दिल्ली हैव अ डिफाइंड ट्रांजिट कि यू आर नेवर सम किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अ प्रॉपर स्टेशन. इट्स डिबेटेबल कि वो कैसा है, बट आई थिंक व्हेन इट वाज डिजाइंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट सिस्टम्स in the globe. Probably. Delhi Metro is, I guess, even more advanced than ज़्यादा लाइन से टोरंटो से कंपेयर करोगे आप तो. दिल्ली मेट्रो का भी ट्रांजिट अच्छा है, बट पुणे का ट्रांजिट वाज नॉन एग्जिस्टिंग. हाँ, मतलब एक्टिवा से आप एंड इवन आप वहाँ कार भी नहीं ले जा सकते क्योंकि 2 व्हीलर ट्रैफिक इतना है, तो आप एक्टिवा से ही जाओगे. एंड आई थिंक मैंने ये ऑब्जर्व किया, लाइक जैसे मैं बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ, तो आई हैव ट्रैवल्ड इन लोकल ट्रेन्स अ लॉट. आई डिड नॉट एक्चुअली गेट अ अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन द मेट्रो ओवर देयर इन बॉम्बे. लाइक वहाँ पे चालू हो गई थी जब मैं आ रहा था, बट आई डिड नॉट गेट अ चांस बिकॉज मेरे को उतना मेरा वो रूट नहीं था. बट व्हेन यू ट्रैवल इन बॉम्बे लोकल ट्रेन्स ना, तो मतलब वन थिंग दैट यू विल फाइंड लाइक इज द भीड़ यार. गर्दी बोलते हैं अपने वहाँ पे. गर्दी है, गर्दी. वही ना, जहाँ पे 100 लोगों की जगह है वहाँ पे 500 लोग जाएंगे, right? But still, like the system works perfectly fine, huh? Even with that kind of a load, but like the people that are inside the train, they are suffering quite a lot. तो मेरे लिए जब मैं टोरंटो में आया था, and I found कि अगर लेट्स से कोई कुछ इंसिडेंट भी हो जाता ना, पहले तो पब्लिक अनाउंसमेंट होती है सबवे में, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ हो गया है इस वजह से. लाइक दे आर इन्फॉर्मिंग द पीपल हु आर देयर इन देयर कि हम ये रुके हैं इस वजह से. दूसरी बात है कि अगर कुछ सीवियर भी हो गया ना, दे विल स्टॉप द ट्रेन. लाइक यहाँ पे जान की कीमत ज़्यादा है, आई वुड से. शटल बसेस चालू कर देंगे. ट्रांजिट इज एक्चुअली, अगर आप टोरंटो में किसी भी सबवे लाइन के आसपास हो, रह रहे हो, तो ट्रांजिट अच्छा है. ट्रू. आई थिंक नियर सबवे लाइन ट्रांजिट इज रियली गुड. बट आउटसाइड वही प्रॉब्लम वही है ना, नॉर्थ अमेरिका का वही है. लाइक टोरंटो में बहुत अच्छा है, न्यूयॉर्क सिटी या उसके आसपास के जो वहाँ बहुत अच्छा है. बट द मोमेंट यू गो आउट ऑफ दोज बिग सिटीज, इवन बिग सिटीज में भी ये 2-4 ही हैं जैसे मॉन्ट्रियल वगैरह, ऐसे ही हैं जिनका अच्छा है. नंबर 1 इज मॉन्ट्रियल, राइट, बिकॉज मॉन्ट्रियल बहुत प्यारा है. एक्चुअली उनका थॉट प्रोसेस है कि हमें कार पे डिपेंडेंसी कम करके ट्रांजिट बढ़ाना है. सो मॉन्ट्रियल उस मामले में है. वैंकूवर का क्योंकि नया है, तो वैंकूवर का भी अच्छा ट्रांजिट है. अगर आप नए कनाडा आ रहे हो और टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर कहीं भी हो, तो लिव नियर डाउनटाउन्स. डोंट लिव इन प्लेसेस वेयर यू फाइंड योर ओन ज़्यादा. मतलब ब्रैम्पटन बोलना, सीधा नाम बोलना. हाँ, ये थोड़ा मल्टीकल्चरल. आप एक बार डाउनटाउन टोरंटो जाके देखो, आपको कितना सारा मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा. कितने सारे फेस्ट होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं. थिंक आपको वाइब मिलेगी सिटी की, आप जहाँ रह रहे हो. प्लस वहाँ पे कई सारे ऐसी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल अभी लिटिल इटली के अंदर उन्होंने सब कुछ बंद करके इटली फेस्ट किया, डू वेस्ट फेस्ट किया, ग्रीक फेस्ट होता है. हाँ, लिटिल इंडिया भी है वहाँ पे, जेरार्ड स्ट्रीट. हाँ. आई डिड नॉट लाइक फूड वुड नहीं, बट फील आता है ना कि अच्छा हाँ यहाँ पे भी एक लिटिल इंडिया है, यू नो, डाउनटाउन में, टोरंटो में. देयर इज लिटिल पोर्चुगल, देयर इज लिटिल इटली, ग्रीक. हाँ, ग्रीस, लिटिल इटली है. लिटिल टिबेट भी हो गया, जो मोमो आपने वीडियो बनाया था, जो मोमो टाउन है. सो हाँ, वहाँ पे काफ़ी कुछ है. चाइना टाउन तो है ही यार. केंसिंगटन मार्केट, हाँ, कोरिया टाउन भी है. दैट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट फील ऑफ द सिटी. और जो आप एक्चुअली में कल्चर के साथ मिक्स करने वाली बात हो ना, आपको अगर डाउनटाउन में ही रहोगे तभी आती है, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू ओवर हियर. हाँ, इट्स गुड. एवरीथिंग इज क्लोज, राइट. आपको जिम के लिए कार लेके या टीटीसी लेके नहीं जाना पड़ेगा. आपका जिम बहुत सारे नज़दीक मिल जाएंगे. ट्रू. आपको काफ़ी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. सो टेल मी अबाउट वन थिंग यार, लाइक जैसे अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है, इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल. लाइक स्टार्टअप्स हैव लाइक बूम्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स स्पेशली. एंड कनाडा में तो चलो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट. व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आज के दिन में? लाइक लेट्स से अगर मैं इंडिया की कंपेयर करूँ कनाडा के साथ, कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है? विद रिस्पेक्ट टू टेक, इंडिया इज ग्लोबल GCC hub, like global capability center का hub. So a lot of companies from US, Europe have their centers in India. So Pune, Bangalore वगैरह में.
and I think Chennai as well. So I guess in terms of absolute number of opportunities शायद इंडिया में ज़्यादा होंगे, right? Because it's वो ग्लोबली सबका बैक ऑफिस है, सो ग्लोबल कंपनी वहाँ सेटअप कर रही हैं अपना कैपेसिटी सेंटर्स. सो एब्सोल्यूट नंबर में हाँ, बट आई थिंक इन कनाडा विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन यहाँ पे कम होंगी. ओके. विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हो सकता है कम हो. ओके. टेक में प्रोपोर्शनलिटी वाइज शायद से कनाडा में कम हो, शायद कम होगी. हाँ, बट देन डिपेंड करता है कौन से सेक्टर. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट प्योर प्ले एआई, सो कई सारे कंपनीज, सो फॉर एग्जांपल जो चीफ ओपन एआई का वन ऑफ द की गाइज इलिया, ही स्टडीड इन टोरंटो फॉर 8 or 10 years. One of the fathers of modern AI जिनको बोलते हैं, he teaches in Waterloo I think and McGill. So depend करता है what all are you looking at. दोनों जगह होंगी अपॉर्चुनिटीज, बट आई थिंक इंडिया में क्योंकि ग्लोबली काफ़ी सारी कंपनीज अपने सेंटर सेटअप कर रही हैं, तो शायद वॉल्यूम वाइज ज़्यादा हो. दैट्स लाइक क्लियर रियलिटी. यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट इन इंडिया, लाइक इतना ह्यूमन रिसोर्स है. एनी एंड एवरी कंपनी विल वांट टू take advantage of that human resource, so they would want to set up shop over there. The place where country like let's say Canada will have to focus on is, rather than focusing on the volume of it, focus on the quality of it. right? कि क्या आप यहाँ पे जो लोग हैं उनको इस तरह का काम दे पा रहे हो जो कि शायद उनको कहीं और नहीं मिलेगा. जैसे आपने बोला कि स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज को एक्सेस देना या स्किल्स इन फॉर एग्जांपल मूवी शूटिंग, राइट? इफ यू टेक एग्जांपल फिल्म प्रोडक्शन, टोरंटो एंड कनाडा इज एट फोरफ्रंट ऑफ दैट. दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली. या, सो आई थिंक देयर आर स्पेशलाइज्ड एरियाज वेयर कनाडा हैज done really good. If I focus mainly on tech, right? Like, so is your assumption or is your perception that यहाँ पे जो focus है वो वॉल्यूम पे नहीं है? वॉल्यूम पे नहीं, इंडिया में वॉल्यूम क्वालिटी ऑफ इट. एंड आई थिंक इंडिया में क्वालिटी भी आ रही है. इंडिया में इफ यू लुक एट द स्टार्टअप्स, इंडिया में इफ यू लुक एट कंपनीज, इंडिया में वॉल्यूम और क्वालिटी दोनों आ रही है. और यहाँ पे लेकिन वॉल्यूम नहीं हो सकती बिकॉज पॉपुलेशन ही नहीं है. एंड कॉस्ट भी तो होता है, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट. सो आई थिंक इंडिया के अंदर वॉल्यूम हैपेंस बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट बेनिफिट. That's true. That is true as well. Connected to that, and this is going to be a very important discussion for a lot of our folks. अगर आपकी सैलरी इंडिया में X है, तो आपको कनाडा में कितनी सैलरी चाहिए भाई? मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे रील बना के गालियों पे गालियाँ खाई हैं जब मैंने बताया कि भाई इतना इजी कंपैरिजन नहीं है व्हेन यू सिंपली टेक इनटू फैक्टर ऑफ पीपीपी फॉर एग्जांपल. नया वर्ड आता है इन्फ्लुएंसर्स, उसको पकड़ लेते हैं. हाँ, सो डोंट गो टू पीपीपी. If I ask you, एक सिनारियो लेते हैं from here because you are more recent in Canada from India, so you have more recent sort of overview of what's going on in India, and there's a lot that's going good in India by the way. अगर वहाँ पे कोई, मैं एक बॉल पार्क फिगर ले रहा हूँ, अगर 20 लाख रुपए की सैलरी है इंडिया में, तो कनाडा में आके अगर उसको ऑप्शन मिला जाए कि भाई तेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, then what salary that person should ask for if that person is coming to Canada? I'll answer it in a different way. Okay. जैसे मेरे सामने भी सेम सिचुएशन थी. मेरी इंडिया में सर्टेन सैलरी थी, मैं यहाँ आया. एक मेट्रिक तो ये होता है कि आप वो पीपीपी वगैरह उस सब में घुस जाओ, आपको सही आंसर शायद नहीं मिलेगा. आप ये देखो पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है. क्या आपको एक्सपोजर चाहिए? जैसे कई लोग मैंने देखा है इंडिया से पोलैंड मूव होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरीज होती है इंडिया और पोलैंड में, पर वो इसलिए जाते हैं. तो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने क्वालकॉम की नौकरी छोड़ी इंडिया में, एंड क्वालकॉम वाज पेइंग हिम वेरी हैंडसमली टू मूव टू पोलैंड. क्यों? क्योंकि उसे यूरोप बहुत अच्छा लगता है, उसे घूमना अच्छा लगता है यूरोप में, उसे यूरोप का कल्चर अच्छा लगता है, उसे आउटडोर्स ही नेचर अच्छा लगता है यूरोप का. सो पहले तो आपका गोल क्या है? अब लेट्स से मनी आपका गोल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का गोल इंडिया, इफ़ यू आर एन इंडियन यू कम फ्रॉम अ डेफिशिएंसी बैकग्राउंड, यानी अगर आप वेल्दी भी हो तो शायद एक जनरेशन ऊपर वेल्दी होगे, इससे ज़्यादा बहुत कम होंगे. तो आप ये देखो कि आप अगर इंडिया में 20 लाख कमा रहे हो, आप कितना बचा रहे हो? आफ्टर टैक्सेस, आफ्टर एक्सपेंसेस आपका बचत क्या है? आप देखो कि कनाडा के अंदर आपको जो सैलरी मिल रही है, आप उसमें कितना बचा सकते हो. अगर आप इंडिया के मुकाबले 1.2, 1.3 या 1.5 टाइम्स बचा पा रहे हो, तो इट्स वर्थ कमिंग, राइट? आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा, एक वेस्टर्न कंट्री में रह लोगे और ज़्यादा पैसे बचा लोगे.
Got it. So that's sort of like your own inbuilt formula कि अगर आप जो इंडिया में बचा रहे हो और अगर उतना भी बच रहा है तो आ जाओ यार, एटलीस्ट उतना भी बच रहा है तो आने में हर्ज नहीं आने है, में हर्ज क्या है। बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ गेट एक्सेस टू अदर प्रीमियम एट्रीब्यूट्स लाइक जैसे आपने बोला आपके फ्रेंड के बारे में पोलैंड, तो कनाडा में अगर कोई आएगा तो दे विल कम फॉर लाइक बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हो आप, या इवन एक्सेस टू लाइक यूएस मार्केट, राइट? लाइक यू कैन एक्चुअली सेट अप अ बिजनेस लेट्स से इन कनाडा एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट सेलिंग स्टफ डायरेक्टली टू द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। या वो सब भी छोड़ दो, आप तो सोचो कि अगर आप यहाँ आ रहे हो कनाडा में तो अगर आपकी एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप बोल रहे हो कि यार आपकी कंपनी मूव कर रही तो ही आप आ रहे हो, राइट? तो आप ये देखो कि यार आप एक कंट्री घूम लोगे। ट्रू, लाइक व्हाई नॉट जस्ट टेक द एक्सपीरियंस ऑफ इट। हाँ, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, आपके पास वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, आप कभी भी जा सकते हो वहाँ पे। तो ट्रू। सो यू आर सेइंग कि somebody asks why do you come to Canada, your initial answer is why not यार। हाँ, मतलब अगर इफ इट इज मैपिंग आउट, ऐसा भी नहीं कि आप अपने घर से पैसा लगा रहे हो, अगर आप नौकरी लेके आओगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा कमाओगे तो ही आप आ रहे हो। ट्रू, एंड आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, लाइक आजकल जैसे जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना जो कैनेडियन इकोनॉमी की, या आई गेस इट्स अ ग्लोबल थिंग, लाइक जॉब्स काफ़ी कम क्रिएट हो रहे हैं आज की दुनिया में, या अगर क्रिएट हो रहे हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक जो निश स्किल्स हैं उन्हीं में क्रिएट हो रहे हैं। ऑल्दो आई थिंक मैंने कुछ ऑब्जर्व किया कुछ रिसेंट टाइम से थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। डू यू फील और डू यू हैव एनी नॉलेज कि लाइक इज दिस लाइक अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ अ फिनोमेना और इज दिस लाइक स्पेसिफिक टू कनाडा कि कनाडा में ही थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है? आई थिंक सब जगह के जॉब्स के डेटा देख के आइडिया लगेगा आपको, और आपकी फील्ड में कितनी जॉब्स हैं। जैसे लिंक्डइन पे जाओ और फिल्टर करो आपके यहाँ कितनी जॉब्स, आपको पता चल जाएगा इंडिया में कितनी हुई है, यहाँ पे कितनी है। आई थिंक उससे बड़ा बेंचमार्क नहीं होगा ना कुछ भी। स्किल टाइप करो एंड लोकेशन टाइप करो, रीसेंट का फिल्टर लगा दो लास्ट 1 और लास्ट 2 वीक और आपको पता चल जाएगा। Got it. और अगर आप नीश एरिया में हो, जैसे आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो, आप सोलर या उस तरफ हो, तो फिर तो आपको 1-to-1 बात करके पता चल जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ बहुत छोटी हैं। What would you advise any newcomer? Someone who came as me on a work permit or a new student or something. Let's do it one by one. So let's say there is a new student coming who's coming here to do a tech course. What kind of advice will you give that person? And then we'll go with what kind of advice would you give a person who's coming, let's say, on a close work permit similar to you? So student first. See, if your family situation allows, I'm not saying that सबका allow करेगा, थोड़ा पार्ट टाइम जॉब पे फोकस कम करके अपने स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जब टाइम अपने आप में इन्वेस्ट करोगे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। So rather than focusing on the short term हाँ, शॉर्ट टर्म, हाँ, work towards the long term benefits. क्योंकि वो बहुत लेबर इंटेंसिव जॉब्स भी होती है, राइट? आपका अगर आप उसमें कहते हो तो आप कितना टाइम अपने आप को दे पाओगे, राइट? मेक प्रोजेक्ट्स। सो मेरी कज़न है, उसने 21 के अंदर यूएस से एमएस किया, एंड यूएस के अंदर तो पार्ट टाइम जॉब का सीन ही नहीं होता है। तो आप आउटसाइड कैंपस आप नहीं कर सकते, राइट? सो आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ते हैं, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो उसमें आप फोकस्ड हो जाते हो वो करने के लिए। आई थिंक सिमिलरली आपको फोकस यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल रही है तो आप करो, बट फोकस आपको होना चाहिए कि यार आप पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि आपको लाइफ में एक बार अच्छी मास्टर्स करने का मौका मिलेगा, उसको अच्छे से यूज़ करो। Got it. And do you always recommend generally कि अगर बाहर आना तो मास्टर्स ही करने आना है, या do you think कि नहीं बैचलर्स करने भी आप आ सकते हो? अगर आप बैचलर्स कर रहे हो और आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो एक अलग एडवांटेज है। आप देखो, अच्छे जो बैचलर कोर्सेज होते हैं दे ऑलवेज कमांड हायर सैलरीज देन मास्टर्स। जैसे इंडिया के अंदर आईआईटीज़ में, आईआईटी कानपुर का डेटा रिलीज हुआ था रिसेंटली, एवरेज सैलरी ऑफ बैचलर्स इज समवेयर अराउंड बिटवीन 40 to 50 lakhs पर एनम, और मास्टर्स की वही 21 थी। आईआईटी कानपुर के बैचलर्स की 40 लाख, हाँ, 40 to 50 lakhs की एवरेज सैलरी उनका पब्लिक डेटा है, और मास्टर्स में 21 लाख, मास्टर्स में आधी है। सो आई थिंक ग्लोबली अच्छा बैचलर्स जो होता है ना, गुड बैचलर्स, बिकॉज एक तो आप अर्ली ऑन करते हो, सो यू टेक मोर रिस्क। मार्क जकरबर्ग फाउंडेड दिस कंपनी इन हिज ओन डॉर्म रूम बिकॉज ही कुड टेक दोज रिस्क एट दैट टाइम, राइट? आप यंग होते हो, आप में एनर्जी ज़्यादा है, आपका जो पीयर ग्रुप बनता है वो भी अनहिंज्ड होता है। आप उस एज में आपका पीयर ग्रुप भी बहुत अलग होगा। मास्टर्स के अंदर जो पीयर ग्रुप होता है थोड़ा सा वो इतना क्लोज नेट नहीं होता है, क्योंकि मास्टर्स के अंदर आते आते आप कई लोगों की एज होती है, एंड इनफैक्ट यूएस में तो देयर आर पीपल हु आर मैरिड हु डू एमबीए, दे मूव विद देयर फैमिलीज। सो
if you're doing a good bachelor's, I think it helps. It has. But so a good bachelor from a very good reputed university or I college. think you should always try for it. Always try for a good one. What do you think, like, is Canada going the track of US where they essentially want more, if I may use the word, premium talent? यूनिवर्सिटीज़ तो वही है ना. आई थिंक कनाडा में ऑलवेज गुड यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेड. वाटरलू का जो कंप्यूटर साइंस है या जो बाकी प्रोग्राम्स है इंजीनियरिंग, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. True. BlackBerry was फाउंडेड इन founded वाटरलू. in Waterloo, by the way. ठीक है. And I think they were one of the most legendary company. The first phone call that Bell made, I think outside the continent, was from Brantford. Okay. Insulin was, I think, discovered somewhere here. Yeah, that's So true. this country always had premium institutions. If you weather observation towers, And a strong focus on strong research. focus on research and innovation. तो वो तो हमेशा से मैकगिल का, I think computer science, मैकगिल का medical, they are world known. That's true. Piyush Goyal graduated from McGill in 2000, early 2000s. Oh, I did not know that. He's a McGill graduate. Oh, he's is a, that? Yeah, I did not know that. He's Yeah. a bachelor from McGill. Oh. People from Yes Theory जो है, they are all from McGill graduates. They are Wow. from McGill. Yeah, McGill is good for storytelling. McGill is good for other things. That's like that's what I was saying. Like McGill University के बारे में, even when I was searching, researching, if you will, like around 2012, 13 के आसपास, I was quite motivated, to do my further studies. McGill did actually come in a lot of my criteria also. So like तभी मैं थोड़ा सुना McGill के, अरे यार इतनी मस्त यूनिवर्सिटी. I'll give one more data point. So जो top IIT से होते हैं इंडिया में, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, वो कहाँ जाते हैं आफ्टर द बैचलर्स? अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग जाते हैं यूएस, बट जो कनाडा आ रहे हैं या तो मैकगिल आते हैं या वाटरलू आते हैं. एंड इनफैक्ट आई रिसेंटली मेट एन IIT गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट who did his masters from McGill and is working in a core AI company here in Toronto. Nice. Yeah. So that's how I got to know about all of this ecosystem from him. So basically आप बोलो कि if you are like really focused in like research and really focused in learning the skill of it, तो Canada is still a beautiful destination, especially if you're coming to these like really strong and powerful research focused universities and colleges. I think someone did not tell me this earlier, but जितना आप जल्दी मेहनत करोगे आपको उतना ज़्यादा कंपाउंडेड बेनिफिट मिलेगा. जैसे आप जल्दी इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादा रिटर्न बाद में मिलता है, वैसे ही अगर 17th के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए तो शायद मास्टर्स की ज़रूरत भी ना पड़े. Master's ज़रूरत ना पड़े. That's true. So that's about the student part of it. How about if somebody is coming on a work permit like you? I mean, if it makes sense, obviously come. अगर अच्छा लग रहा है आपको, if there is something, but come here and then maybe try to live into places which have more experience, like downtown हो गया, which will have a better assimilation into the society. हाँ, Got it. Like vibe ले लो. vibe ले लो. हाँ, जगह की vibe ले vibe लो. आ जाएगी That's what आपको. I say. हाँ, So- आपको मजा आएगा, आपको कनाडा अच्छा लगने लगेगा जब आप हार्बर फ्रंट पे साइकिल चलाओगे Got it. या जब आप किसी फेस्ट में जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी. Got it. So basically, if you're coming on like let's say like a work permit or something, try to stay in a urban area like in the city downtown, ताकि आप enjoy कर सको city को, rather than just घर से निकल रहे हो, 1 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस करके फिर घर से वापस आ रहे हो और वहाँ पे जाके अपने बेसमेंट में लॉक हो जा रहे हो. जनरली जो क्लोज वर्क परमिट वाले लोग हैं, दे कम एट 30 एंड प्लस एजेस, क्योंकि Because उतना experience चाहिए, काम. एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्लाइंट फेसिंग, तभी आपको भेजेंगे, राइट? तो उस टाइम पे ना लोग, जैसे अगर कोई 21 साल की उम्र में कनाडा आ रहा है तो उसके पास बहुत कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं है. नहीं है. कोई 35-40 साल का इंसान आएगा तो उसके पास 20 साल इंडिया के कंपेयर करने के लिए, फिर यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे अपना मन लगाना बहुत ज़रूरी है. True. That's true. तो आपको दोस्त बनाना ज़रूरी है. आपको और आपको जब आप देखोगे डिफरेंट सिटी सर्विसेज में, जैसे आप लाइब्रेरी जाओ, हरमन भाई ने वीडियो बनाई थी स्विमिंग पूल वाली, आप फैसिलिटी एक्सप्लोर करो. अगर आप किसी दूर दराज के टाउन में बैठे हो तो काई की फैसिलिटी तो आपको नॉट नेसेसरली, और गाड़ी चाहिए आपको. यू हैव टू ड्राइव एवरीवेयर देयर. That's true. मतलब यू कैन साइकिल ऑन हार्बर फ्रंट यार. यू कैन आई थिंक डाउनटाउन टोरंटो के आसपास तो देयर आर डेडिकेटेड साइकिल लेन्स नाउ. देयर इज सो मच दैट यू कैन डू. So आप बोलो कि अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, स्पेशली बिकॉज एट दैट टाइम यू आर अर्निंग, सो यू हैव दैट मच कुशन टू लेट्स से स्टे इन डाउनटाउन टोरंटो. तो
you should rather stay over A there. 40-year-old colleague of mine has $500 insurance in Brampton कार का, वो भी पुरानी गाड़ी है कोई। अच्छा, मतलब उधर पैसा देने से अच्छा रेंट तो मोटा मोटी सेम ही है ना। रेंट के अंदर आई एम नॉट सेइंग चलो कोई डाउनटाउन में रहो, बट एनीवेयर ऑन द सबवे आपका रेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं आएगा। Got it. These are some like sensible decision that you have to take based on your expectation and your मतलब requirement. आई थिंक इवन इफ यू लिव इन अदर सिटीज जस्ट ट्राई टू लाइक लाइफ यार, क्योंकि क्या होता है कॉन्स्टेंटली ना, ऐसे एक ह्यूमन नेचर है कि आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी जल्दी ढूंढते हो कि यहाँ पे तो 5 मिनट में डिलीवरी आ जाती है, 10 मिनट में आ जाती है। You're talking about that reel. एक रील हमने देखी थी, they were saying कि इंडिया वाले अमेजोन पे रिटर्न करने के लिए यहाँ यूपीएस जाना पड़ता है, वहाँ पे तो घर पे भैया आते हैं। वहाँ पे घर पे भैया हाँ, हर देश के अलग तौर तरीके होता है। जैसे आप इंडिया में जाते हो, हर स्टेट का अलग रिवाज है, यहाँ पे अलग चीज़ है। यहाँ पे आप आते हो तो आपको नेचर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, आउटडोर्स ही कल्चर को अप्रिशिएट करोगे। That's true. आपको हर मोमेंट पे कंपैरिजन होगा, जब आप नए नए आते हो ना, आपको हर मोमेंट पे कंपैरिजन होगा। और इंडिया में सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी जो वहाँ पे नहीं है, तो आप उनको अप्रिशिएट करो। एक दो एग्जांपल दो। नेचर, आप यहाँ से 5 मिनट दूर इटोबिको ट्रेल है जो सेंटेनियल तक जाती है सीधे, इन द मिडल ऑफ द सिटी। True. You have a dedicated trail where you can cycle on, you can walk on, covered by trees, and there is a river stream flowing by. Where would you find that in a major city? Then you go to Vancouver, Stanley Park. I mean, that Stanley Park, which has a Pacific Ocean on one side and mountain on the other side, where would you get that view? और Montreal का culture, मतलब musicians music play कर रहे हैं रैंडम जगह पे, आपको वाइब आ रहा है, स्ट्रीट्स बंद कर रखी है, पब्लिक ट्रांजिट है, तो अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। जनरली क्या होता है जब लोग बात करते हैं ना इंडिया वर्सेस कनाडा, तो वो बोलते हैं वो या तो एक कंट्री को अच्छा बोलेंगे, दूसरे को बुरा। हाँ. हर का अलग अलग है। हाँ. आप जब यहाँ आते हो, आप हिमाचल में जाके हाउस बोट तो नहीं ढूंढते हो ना, या आप तमिलनाडु में जाके मोमोज नहीं ढूंढोगे। सो यू आर सेइंग कि जब आप कंपेयर भी करते हो, बी रियलिस्टिक अबाउट योर कंपैरिजन। कंपेयर भी करना क्यों है? पहली बात तो कंपेयर करना क्यों? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, घूमने आए हो, काम करना है, वर्क परमिट पे हो, तो आप थोड़े दिन में जा सकते हो वापस। ट्रू। मतलब उसमें तो कुछ वो नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं, आई नो पीपल हु डू नॉट अप्लाई फॉर पीआर एंड गो बैक। So let's say somebody has come over here on work permit and they did not like Canada for whatever reasons. Is there any shame in that? Like नहीं पसंद है? I know a lot of people I know because the places where I live, जैसे यहाँ मैं रह रहा हूँ, पिछली जगह जहाँ रहता था वहाँ पे काफ़ी सारे क्लोज्ड वर्क परमिट होल्डर आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप आए, आपके साथ कंपनी में और भी लोग आए, तो आपने एड्रेस दे दिया तो आसपास ढूंढ लेते हैं, तो हम साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, तो कई लोग चले जाते हैं और आराम से अपनी चॉइस के हिसाब अपने चॉइस से जाते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि उनको, एंड जनरली पीपल मैच्योर 35-40 के होते हैं ना, आप ये नहीं सोचते कि यार मैं इस कंट्री का झंडा उठा, ये अच्छी बुरा नहीं, वो अपना सोचते हैं मेरा अच्छा क्या है, मैं उसमें चला जाता। And I think that is what you should always think about, right? Like you know, like वो country वाला item तो एक अलग ही पूरा discussion हो गया। I think at the end of the day you have to figure out कि आप और आपकी family के लिए क्या decision better हो सकता है। I'll give an example. One of the best real estate commentators अभी हमारे पास हैं, Daniel Falk. He is a Swiss citizen. वो स्विट्जरलैंड छोड़ के यहाँ रह रहा है। Okay. तो स्विट्जरलैंड बुरा था क्या? So why did he choose over here to live? It's okay. सबको, किसी को कुछ जगह अच्छी लगती है, किसी को कुछ जगह अच्छा लगती है। That's true. So you are saying कि पहली बात तो कंपेयर मत करो। हाँ। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, let's say कनाडा आपको नहीं पसंद आया, and even if you are going back, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, because वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आजकल। एक्चुअली नेगेटिविटी बहुत बुरी चीज़ है। आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप पैसे कमाने आए, थोड़ा बहुत कमाओ, चले जाओ, इट्स ओके। और लोग जाते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, ये सब जो आप कंटेंट मिलता है ना इंडिया वर्सेस कनाडा का, ये अंडर 30 की एज वाला ज़्यादा है, जहाँ पे सारी डिबेट्स हो रही हैं। जो उसके ऊपर है वो मैच्योर्ड है, वो लाइफ उनको हम्बल कर देती है। That is true. That's because of age and experience. हाँ, एज एंड एक्सपीरियंस की है, ठीक है, इट्स ओके। बोथ द कंट्रीज हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। ये मेरे लिए भी बहुत एक अच्छा डिस्कशन है, because I am also learning a lot of things as part of this discussion, that you don't have to take things personally, you don't have to take things as seriously as people take nowadays. Don't take yourself too serious. Perfect. Things को तो छोड़ो, अपने आप को भी इतना सीरियसली मत लो, थोड़ा सा लूज रखो। मेरे को ना वो बेस्ट लगता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट है क्या पागलपंती भी जरूरी है। मेरे को कभी कभी अच्छा लगता है, वो मैं याद करता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे ना, एवरीबडी इज अ चाइल्ड इनसाइड। आपको वो चाइल्ड को हमेशा जिंदा रखना चाहिए।
ये जनरली यूरोपियंस करते हैं. दे डोंट टेक देमसेल्व्स टू मच सीरियसली. And that's why they're happy, right? They're open They're basically. open. हाँ ठीक है. Flexible है. Flexible है. We need to be a little bit more flexible यार. थोड़ा open होना चाहिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, या जैसे आपने बोला मैं नहीं होनी चाहिए. मैं नहीं होना चाहिए. जैसे मुझे लगता है मुंबई वाले बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं उनकी लोकल की ट्रैवल की वजह से. होता है, सही कि बात है. लोकल हम्बल्स एवरीवन. That's true. Struggle humbles everyone. हाँ, right? स्ट्रगल हम्बल. Struggle ही तो है वो. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट मुंबई में सीईओ तो चलो ज़्यादा हो गया, बट समवन हु इज अ डायमंड मर्चेंट एंड नहीं, समवन CEO also goes यार. CEO हम्बलनेस आती है स्ट्रगल से. तो जब आप कनाडा में भी आ रहे हो ना, आपको अगर स्ट्रगल करनी है और करनी पड़ेगी, सब किसी को करनी पड़ती है, दैट स्ट्रगल इज ऑल्सो वाइटल बिकॉज दैट हम्बल्स यू. यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हम्बलनेस, यू गेट आउट योर कंफर्ट जोन. और जब आप सक्सेस पा लोगे ना, चाहे जितनी भी स्ट्रगल हो, वो स्ट्रगल को आप ज़िंदगी भर याद रखोगे और शायद अपनी फैमिलीज़ को, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को सुनाओगे कि देख भाई मैं ये सब स्ट्रगल करके आए और ऐसे एडजस्ट किया. एंड दे विल लव यू इन मोर आई गेस आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द स्टोरी. सो स्ट्रगल से नहीं डरना चाहिए बेसिकली, आप बोल रहे हो, चाहे जो भी हो. या एंड बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस. ऑन दैट नोट आई वांट टू आस्क यू वन फाइनल क्वेश्चन. हाँ. Given what we have discussed and given that you have 3 years, you have been in here for 2.5 to 3 years, would today you still want to come to Canada or not? आई मीन व्हाई नॉट. आई मीन क्यों नहीं. Right, because you are not into comparisons and whatnot. आई एम नॉट इनटू कंपैरिजन. अब मुझे एक अलग नया देश देखने को मिल गया, कई सारी जगह घूम लिया, तो और क्या चाहिए. ठीक है, इट्स ओके. चलो भाई, आपका आंसर इतना ब्यूटीफुल था ना. एंड ऑन दैट नोट ऑफ व्हाई नॉट, आई नीड टू आस्क यू गाइस, व्हाई नॉट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. And I will also link our Instagrams and his YouTube channel where he post a lot of interesting content. So हम दोनों के चैनल्स का और हमारे Instagram का मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें. इस तरह के इंटरेस्टिंग और बहुत सारे वीडियोस मैं डालते रहूँगा. प्लीज़ जुड़े रहें और आपको बहुत अच्छा लगेगा. टेक केयर, हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू यार.